Good morning, student. Look at one more example based on determinant and matrix. The question is, if A equals to this one, then prove A inverse equals to A cube. So, to find out LHS means A inverse, first we have to calculate determinant of A. So, determinant of A equals to 1, minus 1, 2 and minus 1. And to solve a determinant of 2 by 2, we know multiply the primary diagonal means 1 into minus 1, 1 into minus 1 we get minus 1, and subtract the secondary diagonal multiplication. So 2 into minus 1 means minus 2. So we get minus 1 plus 2 equals to 1, not equals to 0. So we can calculate inverse of matrix A. Now A11 equals to 1 plus 1 equals to 2 even. So यहाँ जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड 1 1 मीन्स 1 1 दिस एलिमेंट. सो इस रो इस कॉलम को अगर हम लेफ्ट कर दें, छोड़ दें, सो हमारे पास क्या रहेगा माइनस 1. देन A12 1 2 मीन्स 1 प्लस 2 3. सो वी गेट नेगेटिव सिंबल, और 1 2 इज दिस. सो इस रो इस कॉलम को अगर हम लेफ्ट कर दें, सो हमारे पास क्या रहेगा 2. सो 2. देन A21 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. सो वी गेट माइनस सिंबल. देखिए 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ओड, सो सिंबल होगा नेगेटिव. और 2 1 होगा, 2 1 इज दिस एलिमेंट. सो इस कॉलम को इस रो को अगर हम छोड़ दें, लेफ्ट कर दें, सो हमारे पास क्या रहेगा माइनस 1. सो इसका रिजल्ट हमारे पास प्लस 1. देन A22, सो 2 प्लस 2 4 इवन. सो यहाँ पे प्लस, और ये वाली रो 2 2 मीन्स दिस वन. सो दिस रो एंड दिस कॉलम को अगर हम छोड़ दें, हमारे पास क्या रहेगा 1. सो ये हमारे पास आया ये. नाउ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू माइनस 1, देन माइनस 2, 1 and 1 and transpose of this. So we get minus 1, minus 2, 1 and 1. Now A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So we get determinant of A equals to 1. So 1 upon 1 into minus 1 1 minus 2 1. So the 1 upon 1 means 1, और वो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, मैट्रिक्स से. सो हमें पता है जब कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, सो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो जब 1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, सो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस 1 1 माइनस 2 एंड 1. दिस इज LHS. ये तो हुई हमारे पास LHS. अब हम बात करते हैं RHS की. सो टू कैलकुलेट RHS, फर्स्ट कैलकुलेट A इनवर्स. सो टू फाइंड A इनवर्स, first we have to need calculate A square. So A square equals to A into A. So what is A? A is 1 minus 1 2 and minus 1 multiply with again A 1 minus 1 2 and minus 1. So multiply first row with first column, and we get 1 into 1 1, minus 1 into 2 we get minus 2. Then multiply first row with the second column. So we get 1 into minus 1 minus 1 and minus 1 into minus 1 plus 1. Now second row multiply करेंगे फर्स्ट कॉलम से. So 2 into 1 2, then minus 1 into 2 we get minus 2. Then second row को multiply किससे, second कॉलम से. So 2 into minus 1 we get minus 2 and minus 1 into minus 1 we get plus 1. So result is 1 minus 2 means minus 1, minus 1 plus 1 0, then 2 minus 2 0, and minus 2 plus 1 we get minus 1. So this is the value of A square. Now A cube means A square into A. So what is A square? A square is minus 1 0 0 and minus 1 multiply with A. What is A? A is 1 minus 1, then 2 and minus 1. Simplify this, we get minus 1 first row multiply with first column. So minus 1 into 1 we get minus 1, 0 into 2 we get 0. Then first row multiply with second column, minus 1 into minus 1 we get plus 1. Then 0 into minus 1
वी गेट 0. देखिए -1 into -1 +1, then 0 into -1 we get 0. Now multiply second row with first column, so we get 0 into 1 we get 0, then -1 into 2 we get -2. Then second row with second column, 0 into -1 we get 0, and -1 into -1 we get +1. So we get -1, 1, -2 and 1. This is our RHS. So we see here LHS -1, 1, -2, 1 is equal to RHS -1, 1, -2 and 1. So LHS equals to RHS proves this question. एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ A इक्वल्स टू दिस वन, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड B इनवर्स, यहां देखिए B नहीं है बल्कि B इनवर्स है, ठीक है, B इनवर्स इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड AB होल इनवर्स, ठीक है, AB होल इनवर्स. सो हमें पता है इसको हम सोल्व कैसे करेंगे. देखिए एक मेथड तो ये है कि पहले हम A और B का मल्टीप्लाई कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके जो मैट्रिक्स आए उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लें. सो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी कैलकुलेट करना होगा. अब ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए तो है लेकिन बी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां बी इनवर्स की वैल्यू है, बी नहीं है. सो एक मेथड तो ये है कि हम जो है पहले बी फाइंड आउट करें, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका फिर इनवर्स कैलकुलेट करें. दूसरा ये जो मेथड है, पहले बी फाइंड आउट करना, फिर मल्टीप्लाई करना ए बी का, फिर इनवर्स कैलकुलेट करना, ये थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है. सो हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है. वो क्या है? जो आइडेंटिटी है, हमें पता है जब इनवर्स पढ़ा था उस टाइम हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. सो अब देखिए यहां अगर मैं इसकी वैल्यू पता करना चाह रहा हूं, सो मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, सो ये इसके इक्वल होगी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब मुझे इसमें एक तो बी इनवर्स की रिक्वायरमेंट है. सो देखिए बी इनवर्स ऑलरेडी ये रहा हमारे पास, ठीक है. अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? ए इनवर्स की. सो ए मेरे पास है ऑलरेडी, सो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ए इनवर्स की. किसकी वैल्यू? ए इनवर्स की. जब हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, सो मैं बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मेरे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा. सो ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है, ठीक है. इसका जो आंसर होगा यानी ए बी का होल इनवर्स जो है उसका जो आंसर होगा वो ये वाली एक मैट्रिक्स होगी जिसकी वैल्यू होगी -2, 19, -27, उसके एलिमेंट होंगे -2, 18, -25, -3, 29 एंड -42. ये जो इनवर्स ऑफ ए बी होगा वो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी. सो ये क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना है. एक और क्वेश्चन है, हम देखते हैं. इफ ए इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ये है ऑफ 2/2, देन प्रूव ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस वन. सो अगर मैं इसको प्रूव करता हूं, सो मुझे LHS की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी. सो पहले मुझे ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए. सो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करके. उसके बाद मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ए इनवर्स की. सो टू कैलकुलेट ए इनवर्स, फर्स्ट वी नीड to calculate determinant of A. So determinant of A equals to 1, tan alpha minus tan alpha and 1. Now A11, now A11 equals to, हमारे पास 1 मीन्स दिस एलिमेंट. सो इस एलिमेंट को अगर हम लेफ्ट कर दें हमारे पास क्या रहेगा? 1. नाउ A12, 1 + 2 3, सो ओड है, देन यहाँ पे हमें नेगेटिव, और 1 2 ये वाला एलिमेंट है. सो इस एलिमेंट कॉलम को अगर हम लेफ्ट कर दें, सो हमारे पास क्या रहेगा? -tan alpha. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan alpha. देन A21, अगेन 2 + 1 3, सो यहाँ पे नेगेटिव 2 1 ये वाला एलिमेंट है. सो इस कॉलम, इस रो को लेफ्ट कर दें तो हमारे पास रहेगा tan alpha. देन A22 2 + 2 4 पॉजिटिव. सो 2 2 मीन्स दिस एलिमेंट. सो इस कॉलम को अगर हम लेफ्ट कर दें हमारे पास रहेगा 1. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू,
एक मैट्रिक्स बनेगी 1 देन टेन एल्फा देन माइनस टेन एल्फा और 1 और इसका ट्रांसपोज। सो हमें मिलेगा 1 टेन एल्फा माइनस टेन एल्फा एंड 1। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो देखिए अभी हमने यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट नहीं किया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने लिखा है, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को हमने कैलकुलेट नहीं किया है। सो करते हैं, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ये प्लस वाला लेंगे, या आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी डायगोनल जो है उसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 वी गेट 1, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकेंडरी एलिमेंट के मल्टीप्लाई को। सो माइनस टेन एल्फा इंटू टेन एल्फा वी गेट माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। सो वी गेट हियर माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू वी नो sec स्क्वायर एल्फा। So 1 plus 10 square alpha equals to sec square alpha. So now put this value 1 upon determinant of A. So 1 upon sec square alpha, determinant of A equals to 1 upon sec square alpha into ये वाली जो हमारे पास 1 minus 10 alpha upon 10 alpha into 1। ठीक है, नाउ 1 प्लस सेक स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एल्फा। सो ये हमारे पास यहां जो है होगा कोस स्क्वायर एल्फा इंटू 1 माइनस टेन एल्फा अपॉन यहां पे टेन एल्फा इंटू 1। ठीक है, कोस स्क्वायर एल्फा को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बनेगी इक्वल्स टू वी गेट, यहां चलिए यहां लिख देता हूं, वी गेट कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट कोस स्क्वायर एल्फा, देन माइनस टेन एल्फा से मल्टीप्लाई होगा। सो वी नो कोस स्क्वायर एल्फा इंटू माइनस टेन एल्फा मीन्स माइनस साइन एल्फा अपॉन cos alpha, then cos square alpha इससे multiply, then we get cos square alpha into sin alpha upon cos alpha, then cos square alpha into 1 we get cos square alpha। ठीक है, हमें जो है ये वैल्यू मिलेगी। अगर इसी को मैं आगे थोड़ा और सॉर्ट आउट करता हूं, then we get equals to then cos square alpha, then we get cos square alpha and cos square alpha into this one। so एक cos की पावर कैंसिल हो जाएगी। so हमारे पास यहां रहेगा माइनस साइन एल्फा एंड cos alpha अपॉन में 1 cos जो है ये cos इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहां रहेगा साइन एल्फा एंड cos alpha। फिर यहां हमारे पास रहेगा cos स्क्वायर एल्फा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स, वैल्यू ऑफ A इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसपोज ऑफ A इनटू A इनवर्स। सो देखिए हमारे पास A की वैल्यू ये है, A इज दिस वन। सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं मींस इस जो A मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैं डायरेक्ट यहां इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं। ट्रांसपोज जो है वो होगा 1, यहां होगा टेन एल्फा, यहां होगा माइनस टेन एल्फा और यहां होगा 1। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज आया। अब जो है इस ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से। सो इनटू A इनवर्स इज कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, देन साइन एल्फा कोस एल्फा इनटू कोस स्क्वायर एल्फा। सो देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 किस से मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर एल्फा से। सो हमें यहां मिलेगा कोस स्क्वायर एल्फा, 1 इंटू कोस स्क्वायर एल्फा वी गेट क्या मिलेगा हमें, कोस स्क्वायर अल्फा, देन माइनस टेन एल्फा। अब जो माइनस टेन एल्फा है ये मल्टीप्लाई होगा इससे,
सो माइनस टेन एल्फा जो है उसको मैं लिखूंगा साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। माइनस टेन एल्फा को क्या लिखा, माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इनटू दिस वन। सो ये मल्टीप्लाई होगा किससे, देखिए यहां पे माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इनटू होगा किससे, आप कह सकते हो साइन एल्फा कोस एल्फा से। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास यहां जो है वन किससे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। देन ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, देन माइनस 10 को मैंने लिख दिया साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इनटू हमारे पास होगा यहाँ कोस स्क्वायर एल्फा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। सो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 10 एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा से मल्टीप्लाई होगा, देन साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इनटू कोस स्क्वायर एल्फा, देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा, उसके बाद 10 एल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। 10 को मैंने साइन अपॉन कोस लिख दिया, इनटू इस नेगेटिव सिंबल को मैंने पहले ले लिया, इनटू साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सो देखिए इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास रहेगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ अगर हम देखें एक पावर कोस की कोस से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ हमारे पास रहेगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा और एक नेगेटिव साइन एल्फा कोस एल्फा यहाँ। सो हमारे पास रिजल्टेंट जो -2 साइन एल्फा कोस एल्फा होगा। इसमें अगर हम देखें स्क्वायर से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, सो साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस अगेन साइन एल्फा कोस एल्फा मीन्स 2 साइन एल्फा कोस एल्फा। यहाँ अगर हम देखें इस कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ हमारे पास माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा मीन्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा? वी नो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा equals to cos 2 theta. So here we can write cos 2 alpha. Now ये नेगेटिव तो ये रहा सिंबल नेगेटिव यहाँ, देन 2 साइन एल्फा कोस एल्फा होता है साइन 2 एल्फा। ठीक है, क्या होता है साइन 2 एल्फा। नाउ अगेन दिस इज साइन 2 एल्फा एंड कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू कोस 2 एल्फा। सो ये हमारे पास जो है LHS की वैल्यू आई, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। देखिए ये वैल्यू जो है इक्वल टू कोस 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा, साइन 2 एल्फा एंड कोस 2 एल्फा। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इनवर्स एंड ट्रांसपोज। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन square. So if a equals to this one, then prove a square plus 3a plus 4i equals to 0 and find a inverse. So first we have to calculate a square. So a square equals to a into a. So what is a? A equals to -1, 2 and -2. Multiply with again a. So a is -1, 2 and -2. देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो जो है ए स्क्वायर मीन्स जो ए के जो एलिमेंट है उनका डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। सो -1 की स्क्वायर 1, -1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, -2 की स्क्वायर 4 ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ये जो है गलत है भाई, रॉन्ग है। देखिए जो ए स्क्वायर होगा वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उस मेथड से सोल्व होगा। अभी आपको पता चलेगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे रॉन्ग है। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -1 इंटू -1 वी गेट +1, -1 इंटू 2 वी गेट -2। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सो -1 इंटू -1 वी गेट +1 एंड -1 इंटू -2 वी गेट +2। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सो 2 इंटू -1 वी गेट -2, देन -2 इंटू 2 वी गेट -4। ठीक है,
2 into -1 we get -2, -2 into 2 we get -4. Then second row multiply with second column. So 2 into -1 we get -2, -2 into -2 we get +4. So now this is, we get, here we get 1 minus 2 means -1, 1 plus 2 equals to 3, -2 minus 4 -6, and -2 plus 4 we get 2. So this is the value of a square. So अगर हम देखें, so ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए दोनों में डिफरेंस है. सो हमारा जो ए स्क्वायर है वो ऐसे कैलकुलेट होगा, इस मेथड से कैलकुलेट नहीं होगा. सो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे 3a. सो व्हाट इज 3a? सो 3 इंटू a इज -1, -1, 2 एंड -2. सो हमें पता है मैट्रिक्स से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है, so the number will multiply with each and every element of the matrix. So 3 into -1 we get -3, 3 into -1 we get -3, 3 into 2 we get 6, 3 into -2 we get -6. This is the value of 3a. Now come to calculate 4i. So 4 into one more thing कि यहाँ हमें जो है मैट्रिक्स जो i है वो 1 by 1 की लिखनी है या 2 by 2 की लिखनी है या हमें 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है. सो देखिए इसके लिए जब हमने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ा था, सो हमने ये पढ़ा था कि 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम. सो यहाँ देखिए हमें जो 4i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करना है किसमें? ए में. सो ये तभी ऐड होगा जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा. सो यहाँ हम ए का ऑर्डर देखेंगे, जो ए का ऑर्डर होगा वही क्या होगा? आई का ऑर्डर होगा. सो ए का ऑर्डर अगर हम देखें सो कितने का है? 2 by 2 का. सो यहां जो है आई का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 by 2 का. सो 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी दिस वन. सो 4 अब इससे मल्टीप्लाई होगा. सो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 एंड 4 इंटू 1 4. दिस इज वी गेट 4i. नाउ कैलकुलेट दैट a square plus 3a plus 4i. So what is a square? A square is -1 3, -6 2, then plus 3a. So plus, what is the value of 3a? 3a is -3, 6 and -6. Then plus 4i. So plus, what is the value of 4i? 4i is 4 0 0 4. अब देखिए इनका सॉल्यूशन कैसे होगा? जो सेम एलिमेंट पे, सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेम पोजीशन का जो एलिमेंट है उससे ऐड होगा. सेम पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा किससे? सेम पोजीशन के एलिमेंट से. सो देखिए ये जो -1 1 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे -1 है, ये प्लस होगा 1 पोजीशन के. फिर अगेन यहाँ सिंबल प्लस है तो प्लस होगा किससे? 1 पोजीशन के एलिमेंट से. अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस हो जाता. सो देखिए हम यहाँ लिखेंगे -1 प्लस होगा किससे? -3 से. सो -1 प्लस करना है -3 से. सो इन दोनों का रिजल्ट, इसका और इसका इस सिंबल के साथ हमें मिलेगा -4. सो यहाँ तक रिजल्ट हुआ -4. देन उसको प्लस करना है किससे? 4 से. सो -4 प्लस 4 हमें क्या मिलेगा? 0. ठीक है. अब हम 1 2 पोजीशन वाले एलिमेंट पे आते हैं. 3 को ऐड करना है किससे? -3 से. तो 3 प्लस -3 वी गेट 0. सो यहां तक हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 0. फिर उसमें ऐड करना है कितना? 0. सो हमें मिलेगा 0. ठीक है. अब आते हैं हम 2 1 पोजीशन पे. सो -6 में ऐड करना है 6. सो -6 प्लस 6 वी गेट 0. उसमें ऐड करना है 0. सो वी गेट 0. देन 2 प्लस -6, देखिए 2 प्लस -6. सो 2 में ऐड करना है -6 को. सो हमें यहां तक रिजल्ट मिलेगा -4. क्या रिजल्ट मिलेगा? -4. उस -4 में हमें ऐड करना है कितना? +4. सो -4 में ऐड करेंगे 4. देन वी गेट 0. सो 0. दिस इज ए नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सॉरी, दिस इज ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. सो इट कैन बी रिटन एज 0. सो दिस इज LHS इक्वल टू 0. सो ये तो हमारा जो पहला पार्ट है वो प्रूव हुआ. अब हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स.
सो आपको पता है ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, देन a11 a12 a21 a22 फाइंड आउट करके एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एक मेथड तो ए इनवर्स का ये है। दूसरा मेथड क्या है ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, देखिए जो हमें ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन अगर मैं इसी इक्वेशन से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं, सो देखिए किस तरीके से होगी। देखिए क्या गिवन है, सिंस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या है गिवन है। सो इससे मैं 4i की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो हमें पता है जब इनकी साइड चेंज होगी सो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a में, ठीक है। अब इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो देखिए हमारे पास ये 4 और ये 4 ये तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू ये हमारे पास माइनस 1/4 ए स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी कैलकुलेट करनी है, ए इनवर्स की। किसकी, ए इनवर्स की। सो देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिए अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इधर भी आपको ये वाली जो मैट्रिक्स का जो पार्ट है, ठीक है, इससे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी आइडेंटिटी को नहीं, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। आइडेंटिटी देखिए दोनों साइड्स में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इनवर्स से। सो इधर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है, सो इधर भी जो मैट्रिक्स है उससे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना होगा ए इनवर्स से। इसी स्टेप को एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर मैं इसको i इंटू ए इनवर्स लिखता, मीन्स मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i के बाद में मल्टीप्लाई किया है, सो इधर भी मुझे जो है ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू ए इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई करना होता। देखिए यहां अगर इनवर्स को बाद में मल्टीप्लाई किया है आइडेंटिटी से, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल जो मैट्रिक्स है उससे बाद में ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उससे पहले ही मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। सो अब जो है इसके बाद हमें पता है जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, सो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें पहले या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई करें, सो रिजल्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ही मिलता है, ए क्रॉस आई और आई क्रॉस ए इक्वल्स टू ए। सो अगर मैं इसमें मैच करता हूं, सो देखिए ए इनवर्स को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, सो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1/4, और जब ये ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो ए इनवर्स यहां मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 3a इनवर्स a इक्वल्स टू माइनस 1/4, और जो a स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूं a इंटू ए प्लस, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम कह सकते हो आप, आइडेंटिटी कह सकते हो, कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किससे, इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें रिजल्ट जो है सदैव ऑलवेज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। सो अब देखिए यहां इन दोनों का रिजल्ट जो है अगर आप देखेंगे, अच्छा उसके आगे यहाँ एक मिनट, हाँ ये लिख दिया, अब प्लस 3 इन दोनों का रिजल्ट जो है ए इनवर्स इंटू ए, सो ए इनवर्स इंटू ए, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा बाय दिस आइडेंटिटी, सो इक्वल्स टू माइनस 1/4। अगेन देखिए ए इनवर्स इंटू ए, सो ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई, सो यहां मुझे मिलेगा आई ए प्लस 3i। अब देखिए अगेन
इक्वल्स टू -1/4 आई इंटू ए इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, सो हमें रिजल्ट मिलेगा a प्लस 3i। सो अब देखिए -1/4, यहां आपको i प्लस 3i को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, a प्लस, देखिए किसको ऐड करना है, a प्लस 3i को आपको ऐड करना है। सो a इज दिस वन। सो अगर मैं इस साइड a प्लस 3i को कैलकुलेट करता हूं, मीन्स a इज -1, -1, 2 एंड -2, 2 एंड -2, और आपको पता है 3i की जो वैल्यू होगी वो होगी 3003, मीन्स 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन दोनों का रिजल्ट जो -1 प्लस 3 वी गेट 2, -1 प्लस 0 वी गेट -1, 2 प्लस 0 वी गेट 2 एंड -2 प्लस 3 वी गेट 1। सो हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा। सो ये रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, देन वी गेट 2, -1, 2 एंड 1। ठीक है, अब जो है, अब -1/4 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट -1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट -2/4, 2/4 मीन्स 1/2, देन माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, एंड 1/4 इंटू 1 वी गेट 1/4। ठीक है, यहां जो है फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस इंटू प्लस वी गेट -1/2, देन माइनस इंटू प्लस वी गेट -1/4 इंटू 1 वी गेट 1/4। सो ये जो है हमारे पास क्या मिलेगा, इसका आंसर। किसका, ये जो आंसर हमें मिला, दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। सो देखिए ए इनवर्स जो है -12, 1/4, -12 एंड -1/4, ये जो है हमारे पास इस ए इनवर्स का आंसर है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ए इनवर्स बाय द गिवन इक्वेशन।